ویلکم بیک۔ بلدیاتی خبروں کا کریں گے باقاعدہ آغاز، اور آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ الیکشن کمیشن نے انتخابات کے حوالے سے بڑا حکم نامہ جاری کر دیا۔ الیکشن کمیشن کا صوبہ سندھ میں بلدیاتی انتخابات سے متعلق بڑا حکم نامہ۔ الیکشن کمیشن نے سندھ میں اضلاع اور علاقوں کی حدود تقسیم کرنے پر پابندی عائد کر دی۔ ضلع کی حدود میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتی، اربن لوکل ایریا کے حدود میں بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی، حکم نامہ جاری۔ الیکشن کمیشن کے حکم نامے میں کہا گیا کہ سندھ حکومت ٹاؤن کمیٹی، میونسپل کمیٹی کی حدود میں ہرگز کوئی تبدیلی نہیں کر سکتی، جبکہ نئی حلقہ بندیاں سابقہ حدود پر ہی ہوں گی۔ سندھ حکومت کا کسی بھی حدود میں تبدیلی کا اختیار اب ختم ہو گیا۔ خبر شامل کریں گے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حوالے سے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے انتخابی فہرستوں پر نظر ثانی کے پہلے مرحلے میں 15 دن کی توسیع کر دی۔ تصدیقی عمل کی آخری تاریخ 6 دسمبر مقرر تھی، جبکہ اب انتخابی فہرستوں پر تصدیقی عمل 31 دسمبر تک جاری رہ سکے گا۔ الیکشن کمیشن نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ تصدیقی عملے سے مکمل طور پر تعاون کریں اور سال 2023 کے عام انتخابات کے لیے اپنے ووٹ کے اندراج کو بھی یقینی بنائیں۔ صوبہ پنجاب کے انتخابات کے لیے نیا بلدیاتی نظام تیار کر لیا گیا۔ تحریک انصاف اور مسلم لیگ کاف میں معاملات طے پا گئے۔ پنجاب میں 11 میٹروپولیٹن کارپوریشنز ہوں گی۔ میٹروپولیٹن کارپوریشنز میں لارڈ میئر ہوگا۔ 9 ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں میٹروپولیٹن کارپوریشنز ہوں گی، جبکہ پنجاب کے دیگر 25 اضلاع میں ڈسٹرکٹ کونسلرز بھی ہوں گے۔ ڈسٹرکٹ کونسلرز کے براہ راست ڈسٹرکٹ میئر ہوں گے۔ تحصیل کونسلز، میونسپل کارپوریشنز اور میونسپل اور ٹاؤن کمیٹیاں نہیں ہوں گی۔ صوبہ پنجاب کا نیا بلدیاتی نظام تیار۔ پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ کاف میں معاملات طے پا گئے۔ صوبہ پنجاب میں 11 میٹروپولیٹن کارپوریشنز ہوں گی، جبکہ میٹروپولیٹن کارپوریشنز میں لارڈ میئر بھی ہوگا۔ 9 ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں میٹروپولیٹن کارپوریشنز ہوں گی۔ پنجاب کے دیگر 25 اضلاع میں ڈسٹرکٹ کونسلز بھی ہوں گے۔ ڈسٹرکٹ کونسلز کے سربراہ ڈسٹرکٹ میئر ہوں گے۔ تحصیل کونسلز، میونسپل کارپوریشنز، میونسپل اور ٹاؤن کمیٹیاں نہیں ہوں گی۔ سندھ کی دوسری بڑی جماعت متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے سڑکوں سے رجوع کر لیا۔ سندھ حکومت اور پاکستان پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم دینے کا فیصلہ کر لیا۔ سندھ میں بلدیاتی ترمیمی بل کے خلاف ایم کیو ایم پاکستان سڑکوں پر آ گئی۔ بلدیہ وسطی کے مرکزی دفتر کے باہر ایم کیو ایم کی جانب سے احتجاج، کراچی دشمن بل نامنظور کے نعرے۔ مظاہرین نے مطالبات کے حق میں بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے۔ ایم کیو ایم کے رہنما کنور نوید کہتے ہیں کہ نہ کوئی عدالت تو کوئی ادارہ نہ وفاقی حکومت داد رسی کو آتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم کراچی کے ساتھ زیادتیوں کی عدالت میں پٹیشن دے چکے ہیں، مگر اس پٹیشن پہ اب تک کوئی سماعت نہیں ہوئی۔ سندھ حکومت نے نئے نظام میں کے ایم سی کا باقی ادارے بھی اپنے ماتحت لے لیے۔ کراچی چلتا ہے تو ملک کی معیشت کا پہیہ چلتا ہے۔ سندھ حکومت کراچی کے ساتھ مسلسل زیادتیاں کر رہی ہے۔ عمران خان کراچی کو سندھ حکومت کے زیادتیوں سے نجات دلائیں۔ سابق میئر کراچی وسیم اختر کی وزیراعظم عمران خان سے اپیل۔ احتجاج کے شرکاء سے خطاب میں کہا کہ سندھ حکومت نے زیادتیوں کی انتہا کر دی ہے۔ وفاق نے بھی سندھ حکومت کی زیادتیوں کے خلاف خاموشی اختیار کی ہوئی ہے۔ ہر دروازے پر دستک دی، اب تک کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ علاقے لیاقت آباد گجر نالے کے قریب پیپلز پارٹی کی جانب سے سندھ اسمبلی سے پاس کردہ بلدیاتی آئینی ترمیمی بل کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ آج ہمارا یہ پرامن احتجاج ہے، خدا نخواستہ یہ پرامن احتجاج صوبائی اسمبلی کی طرف نہ رخ کر جائے۔ کالا قانون، کالا قانون۔ مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے کنور نوید جمیل کا کہنا تھا کہ کوئی عدالت، کوئی حکمران مہاجروں کے ساتھ ہونے والی زیادتی کا نوٹس نہیں لے رہا۔ ترمیمی بلدیاتی بل واپس نہ ہوا تو حکومت کے خاتمے اور صوبے کے حصول کے لیے جلد تحریک کا آغاز کریں گے۔ پاکستان کے حکمرانوں نے ان پاکستان بنانے والوں اور پاکستان کی اولادوں کو سندھ میں اور کراچی میں پیپلز پارٹی کی اور سندھ حکومت کی متعصب قیادت کے حوالے کر دیا ہے۔ آپ تیار ہو جاؤ، ایک بہت بڑی
तहरीक चलाने के लिए, अपने हुकूक को हासिल करने के लिए इस जालिमाना और नाइंसाफी के इस कानून के खात्मे के लिए। कंवर नवीद जमील का कहना था कि पीपल्स पार्टी की मुतासिब हुकूमत की पुश्त पर है। हमारी पिटीशंस अदालतों में सिसक रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। जाली डोमिसाइल पर नौकरियां दी जा रही हैं, हर दरवाजे पर दस्तक दी, कोई सुनवाई नहीं हुई। लाखों जाली डोमिसाइल बनाकर सिंध के शहरी इलाकों के नौजवानों को नौकरियों और तालीम से महरूम किया गया। हमने कोई दरवाजा ऐसा नहीं है जो नहीं खटखटाया हो। अदालतों में एमक्यूएम की पिटीशनें बड़ी हुई सिसक रही है। वसीम अख्तर ने कहा कि सिंध हुकूमत ने ज्यादतियों की इंतहा कर दी है। वफाक ने भी सिंध हुकूमत की ज्यादतियों के खिलाफ खामोशी इख्तियार की हुई है। इमरान खान कराची को सिंध हुकूमत की ज्यादतियों से निजात दिलाएं। पूरे सूबे को तबाह कर दिया, कराची को तबाह करने जा रहे हैं। मैं साहिब इक़्तिदार से बोलूंगा, हम कोर्ट में भी हैं, सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन पेंडिंग है। गुलजार साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि जाने से पहले इस पिटीशन पे कोई फैसला दे जाएं। कराची के लोग आपको याद रखेंगे, वरना बिल्डिंग गिराने पे याद रखेंगे सिर्फ। इमरान खान साहब से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस इशू को देखें। कराची का इशू है, मुल्क का सबसे बड़ा शहर है, आपको रेवेन्यू प्रोवाइड करता है। अब नहीं देखेंगे कराची को तो कब देखेंगे फिर? एमक्यूएम के रहनुमाओं का मजीद कहना था कि अब हम इस फस्तातियत का साथ नहीं देंगे। हमारा एहतजाज हर गली, हर मोहल्ले और सड़क पर सरापा एहतजाज रहेंगे। अपने मकासद के हुसूल के लिए जानों का नजराना देने से भी गुरेज नहीं करेंगे। और साथ ही साथ ये भी बताएं कि पाक सरजमीन पार्टी ने भी हुकूमत सिंध को टफ टाइम देने का फैसला कर लिया। पाक सरजमीन पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में मुस्तफा कमाल और अनीस कायम खानी की क़यादत में बल्दियाती एक्ट के खिलाफ हिकमत अमली पर गौर किया गया, जबकि सियासी जमातों से राब्ते तेज करने का भी इजलास में फैसला किया गया है। एहतजाज से मुतालिक उमूर पर भी तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक सेनेटर निहाल हाशमी ने सिंध हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बना डाला। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा निहाल हाशमी कहते हैं कि कराची शहर को हर लिहाज से तकसीम किया गया। आप अपने हलके से लोगों को लाकर कराची में बसाते हैं और फिर उनको भी नौकरियां बेचते हैं। जो सीएम को इख्तियार है वही इख्तियारात इस शहर के मेयर को भी होने चाहिए। निहाल हाशमी का यह भी कहना था कि कराची का साहिल हो या कराची के वसाइल, कराची पर हक कराची के मुंतखब नुमाइंदे का है। आज भी गैर कानूनी तामीरात के लिए बिल ला रहे हैं ताकि बिल्डर्स को नवाजा जाए। आप कहते हैं जी हॉस्पिटल्स अब सिंध गवर्नमेंट ले लेगी। अब्बासी शहीद हॉस्पिटल भी सिंध गवर्नमेंट के जेर निगरानी होगी। कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज और उससे मुल्का जो भी इदारे हैं वो भी सिंध गवर्नमेंट के पास होगी। और जितने भी इस तरह के केएमसी के पास सेहत की सहूलतें हैं वो सिंध गवर्नमेंट लेगी। मैं पूछना चाहता हूं जनाब सिंध गवर्नमेंट के तमाम जिम्मेदारान से कि जो मौजूदा सिंध गवर्नमेंट है और उसके मातहत जो अदालत जो हस्पताल हैं, क्या उन हस्पतालों में डॉक्टर पूरे हैं? क्या उन हस्पतालों में दवाइयां दी जाती हैं? क्या उन हस्पतालों में सीटी स्कैन और दीगर जो भी मशीन्स है वो अवेलेबल हैं? और अगर हैं तो क्या उनके ऑपरेटर्स हैं? और अब तो कुछ तस्करा करेंगे सिंध के वज़ीर इत्तलात और मेहनत सईद गनी का। आपको बताएं कि सिंध काबीना का लोकल बॉडीज़ को मज़ीद बाइख्तियार बनाने का फैसला। ओपोजिशन जमातों के एतराज़ात पर तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने पर आमादा। सिंध के वज़ीर इत्तलात सईद गनी कहते हैं कि काबीना ने लोकल बॉडीज़ को मज़ीद बाइख्तियार बनाने का फैसला किया है। बल्दियाती एक्ट में तरमीम पर ओपोजिशन को एतराज़ है, हम बात करने को तैयार हैं। लोकल गवर्नमेंट कानून पर बहुत शोर मचा हुआ है। मेयर का इलेक्शन कोई भी लड़ सकता है। मेयर के इलेक्शन के लिए जरूरी नहीं कि वो कौंसिल का मेंबर हो। प्रॉपर्टी टैक्स की कलेक्शन सूबाई हुकूमत करती है। प्रॉपर्टी टैक्स की कलेक्शन भी लोकल कौंसिल को दे दी जाएगी।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध काबीना के इजलास के हवाले से वज़ीर इत्तलात व मेहनत सिंध सईद खानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि लोकल गवर्नमेंट कानून पर बहुत शोर मचा हुआ है। मेयर के इलेक्शन के लिए जरूरी नहीं कि कौंसिल का मेंबर हो, मेयर का इलेक्शन कोई भी लड़ सकता है। प्रॉपर्टी टैक्स की कलेक्शन सूबाई हुकूमत करती है जो अब लोकल कौंसिल को दे दी जाएगी। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ थी जिस पर अभी फैसला हुआ नहीं है, ये आगे कैबिनेट मीटिंग में आ जाएगा, जिस पर आजकल बड़ा शोर मचा हुआ है। लोकल गवर्नमेंट का जो कानून है उस पर हमने ये प्रोविज़न दिया कि जी जो मेयर का कैंडिडेट होगा या चेयरमैन का कैंडिडेट होगा उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि उस काउंसिल का मेंबर हो, कोई बाहर से फ़र्द आकर भी उस इलेक्शन में कंटेस्ट कर सकता है, लेकिन बहरहाल उसको इलेक्शन में कामयाब होना पड़ेगा मेयर बनने के लिए, चेयरमैन बनने के लिए। ये बात बताना इसलिए ज़रूरी है कि सिंध हुकूमत नेक नीयती से चाहती है कि लोकल गवर्नमेंट के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनको मज़ीद एम्पावर किया जाए, उनको इख्तियार दिए जाएँ ताकि वो बेहतर अंदाज से लोगों की खिदमत कर सकें। सिंध की अपोजिशन जमातों पर तनकीद करते हुए सईद खानी ने कहा कि MQM और PTI के लोग अदाकार हैं जो सिंध में बदअमनी फैलाना चाहते हैं। मैं तो सुबह सिंध के लोगों से कहूँगा कि इनको पहचाने, चाहे MQM हो चाहे PTI हो। ये अदाकार हैं, ड्रामेबाज हैं, ये चाहते हैं कि सूबे में बदअमनी रहे, लोगों में बेचैनी रहे, लोगों के घर टूटे ताकि वो सड़कों पे आएँ। इनका मसला ये नहीं है कि लोगों के मसले हल हों। तो ये अगर गवर्नर साहब ने कहा है तो बहुत अफसोस की बात है। वज़ीर सेहत सिंध अजरा पेचूहो का कहना था कि अगर हम बच्चों को दाखिला नहीं देंगे तो हमारे पास डॉक्टर्स की कमी होगी। PMC एक्ट विफाक ने मुसल्लत की 18वीं तरमीम के बाद तालीम सूबाई हुकूमत का मामला है। बाहर के सूबों से आएंगे लोग जो यहाँ पढ़ेंगे और वो वापस चले जाएंगे, तो उसके बाद जो हमारे शॉर्टेज होगी डॉक्टर्स की उसे कौन भरेगा। अगर हम ये परसेंटेज नहीं कम करते तो हमारे लिए मुसीबत ये है कि 4 साल बाद जब ये डॉक्टर्स निकलेंगे, आज हमारे पास 3,500 बेड्स पे एक डॉक्टर है, WHO कहता है 850 पे एक डॉक्टर होना चाहिए और हमारे पास 3,500 पे एक डॉक्टर है। काबीना के फैसलों के हवाले से सूबाई वज़ीर ने मजीद बताया कि नेवी को 200 एकड़ जमीन देने की भी मंजूरी दे दी गई है। अगर अस्पतालों पर भी अपोजिशन को एतराज़ है तो बात करेंगे। बात करेंगे वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास की। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध काबीना का इजलास मुनक़िद हुआ। काबीना ने 250 डीजल हाइब्रिड बसें खरीदने की मंजूरी दे दी। ये बसें सिंध इंट्रा डिस्ट्रिक्ट पीपल्स बस सर्विस प्रोजेक्ट के तहत चलेंगी। खरीदारी का मुआहदा सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी और NRTC के दरमियान अक्टूबर 2021 में हो चुका है। खबर शामिल करेंगे एडमिनिस्ट्रेटर कराची और तर्जुमान सिंध हुकूमत बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब के हवाले से। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने KMC के हेड ऑफिस में RO प्लांट का इफ्तिताह कर दिया। RO प्लांट 28 लाख रुपए की लागत से तामीर किया गया। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि रोजाना 40,000 लीटर पीने का साफ पानी मुलाजमीन और आम शहरियों के लिए दस्तियाब होगा। इसी तरह के मजीद RO प्लांट शहर के दूसरे इलाकों में लगाने के लिए KMC भरपूर ताउन करेगी। समाजी और फलाही इदारे शहर की बेहतरी और तरक्की के लिए हमारे साथ आएं और मिलकर काम करें। एंटी थेफ्ट सेल वाटर बोर्ड ने डिस्ट्रिक्ट वेस्ट मंगोपीर में कायम गैर कानूनी हाइड्रेंट मिसमार कर दिया। गैर कानूनी हाइड्रेंट से जनरेटर्स, वाटर टैंकर्स और सैकड़ों फुट पाइप कब्जे में ले लिया गया। वज़ीर बल्दियात सिंध और चेयरमैन कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड सैयद नासिर हुसैन शाह और MD कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड इंजीनियर असदुल्ला खान की हिदायत पर एंटी थेफ्ट सेल वाटर बोर्ड ने मंगोपीर डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में ऑपरेशन करके गैर कानूनी हाइड्रेंट मिसमार कर दिया। इंचार्ज एंटी थेफ्ट सेल का कहना था कि मुल्जिमान गैर कानूनी हाइड्रेंट के जरिए मंगोपीर डिस्ट्रिक्ट वेस्ट का पानी चोरी करके मुख्तलिफ एरियाज में फरोख्त करते थे। उनका मजीद कहना था कि कार्रवाई के दौरान जनरेटर्स, वाटर टैंकर्स और सैकड़ों फुट पाइप कब्जे में ले लिया गया, जबकि मुलव्विस मुल्जिमान के खिलाफ मुतालिका थाने में पानी चोरी के नए कानून के तहत मुकदमा दर्ज कराए जाएंगे। इस मौके पर वज़ीर बल्दियात सिंध और चेयरमैन कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड सैयद नासिर हुसैन शाह का कहना था कि पानी चोरों के खिलाफ ऑपरेशन का दायरा मजीद वसी किया जाए और शहरियों के हिस्से का पानी चोरी करने वालों को कानून की गिरफ्त में लाया जाए और ऑपरेशन बिला किसी इम्तियाज और तखसीस किया जाए। दूसरी जानिब MD वाटर एंड सेवरेज बोर्ड इंजीनियर असदुल्ला खान का कहना था कि मुल्जिमान किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं, उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए उनके खिलाफ पानी चोरी के नए कानून के तहत मुकदमा दर्ज कराए जाए।
اعلیٰ عدلیہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات کی روشنی میں شہر قائد میں غیر قانونی تجاوزات کے خلاف تابڑ توڑ آپریشن کا سلسلہ جاری ہے۔ بلدیہ عظمی کراچی کے محکمہ انسداد تجاوزات کا کراچی کے 2 اضلاع میں تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن سخی حسن چورنگی اور گلشن اقبال مشرق سینٹر سے تجاوزات کا خاتمہ کر دیا گیا، جبکہ آپریشن میں دکانوں کے سامنے بنائے گئے چبوترے اور دیواریں بھی مسمار کر دی، جبکہ سڑکوں پر رکھا گیا تمام قسم کا سامان ضبط کر لیا گیا۔ بلدیہ عظمی کراچی کا محکمہ انسداد تجاوزات کا عملہ شہر کو تجاوزات سے پاک کرنے کے لیے متحرک سینئر ڈائریکٹر لینڈ اینٹی انکروچمنٹ بشیر صدیقی کی ہدایت پر شہر کے ضلع وسطی اور شرقی میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا گیا۔ ضلع وسطی میں ڈائریکٹر سینٹرل کامران الوی اور ڈپٹی ڈائریکٹر سید مشتاق علی کی نگرانی میں سخی حسن چورنگی سے ناگن چورنگی پر سڑکوں پر قائم تجاوزات کا خاتمہ کیا گیا۔ ضلع شرقی کے ڈائریکٹر خورشید مکرم اور ڈپٹی ڈائریکٹر ریحان صدیقی کی زیر نگرانی گلشن اقبال مشرق سینٹر سے تجاوزات کا خاتمہ کیا گیا۔ کارروائی کے دوران سڑکوں اور فٹ پاتھ پر رکھے گئے کیبن اسٹالز، ٹھیلے اور پتھاروں کو ضبط کر لیا گیا۔ سینئر ڈائریکٹر کے ایم سی اینٹی انکروچمنٹ بشیر صدیقی کا کہنا تھا کہ تجاوزات شہر کی خوبصورتی میں بدنما داغ کی مانند ہے، روزانہ کی بنیاد پر تجاوزات کا خاتمہ کر کے شہریوں کو سہولیات فراہم کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ کے احکامات پر لینڈ اینٹی انکروچمنٹ ڈپارٹمنٹ کراچی میٹروپول کارپوریشن نے آج شہر کراچی کے 2 ڈسٹرکٹ میں بڑی کارروائی کی ہے۔ ڈسٹرکٹ ایسٹ کے اندر جو ہے وہ مشرق سینٹر گلشن اقبال ڈویژن میں مشرق سینٹر کے اطراف جو ہے وہ بڑی کارروائی کی، وہاں پر جتنی بھی مختلف قسم کی تجاوزات تھی ان کو ضبط کیا۔ بالکل سیم اسی طریقے سے ضلع ہمارا جو سینٹر ہے وہاں پر بھی ہماری بڑی کارروائی جاری ہے۔ اس کارروائی کے اندر بھی جتنی بھی دکانوں کے آگے سن شیڈ، دیواریں، چبوترے بنائے گئے تھے ان کو مسمار کیا جا رہا ہے، اور روڈ اور فٹ پاتھ پہ جو پھولوں کی دکانیں کچی پکی بنائی تھی ان کو بھی مسمار کیا جاتا ہے، اور دیگر تجاوزات ضبط کی جا رہی ہے۔ آپریشن کے دوران محکمہ انسداد تجاوزات کی ٹیموں کے ساتھ علاقہ اسسٹنٹ کمشنر، علاقہ پولیس، سٹی وارڈن اور دیگر متعلقہ اداروں کی ٹیمیں بھی موجود تھی۔ خبر شامل کریں گے کراچی کے علاقے سرجانی ٹاؤن سے۔ کراچی کے علاقے سرجانی ٹاؤن میں غریبوں کی زمین ہڑپ کرنے کا منصوبہ ناکام بنا دیا گیا۔ سرجانی ٹاؤن میں سرگرم عامر وڑائچ قبضہ گروپ کے گرد گھیرا تنگ، میٹرو ون نیوز کی کاوشوں سے ادارہ ترقیات کراچی نے قبضہ ختم کرا دیا۔ کے ڈی اے نے قبضہ مافیا سے 12 پلاٹ واگزار کرا لیے۔ قبضہ مافیا کی جانب سے تعمیر کردہ 4 دیواری اور کمرے بھی مسمار کر دیے گئے، جبکہ کارروائی کے دوران قبضہ مافیا عامر وڑائچ گروہ کے 3 کارندے گرفتار، متعدد تاحال مفرور ہیں۔ اور اب خبر شامل کریں گے آتش زدگی کے حوالے سے۔ کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے مرکزی دفتر میں آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا۔ آتش زدگی میں کوئی جانی اور مالی نقصان نہیں ہوا۔ واٹر بورڈ کا تمام تر ریکارڈ محفوظ ہے۔ انجینئر اسد اللہ خان کہتے ہیں کہ چیئرمین آفس میں لگی آگ پر مکمل طور پر قابو پا لیا ہے، جبکہ واٹر بورڈ کے باؤزرز نے خود آگ پر قابو پایا۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے اس بریک کے بعد۔ آپ رہیے بلدیاتی خبروں کے ساتھ۔ ویلکم بیک۔ سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ایم ڈی سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ زبیر احمد چنا کہتے ہیں کہ ضلع جنوبی شرقی ملیر، کماڑی اور غربی میں عملہ علاقوں سے کچرا اٹھانے اور لینڈ فل سائٹ منتقل کرنے کے لیے امور انجام دے رہا ہے۔ ایم ڈی سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ زبیر احمد چنا کا کہنا ہے کہ ضلع کورنگی اور ضلع وسطی میں متعلقہ ڈی ایم سی کے ساتھ کوارڈینیشن سے کچرا جی ٹی ایس سے لینڈ فل سائٹ منتقل کرنے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ مینول سویپنگ، میکینیکل سویپنگ اور علاقوں سے کچرا اٹھانے کے لیے ٹیمیں فیلڈ میں موجود ہیں۔ سینیٹری ورکرز کے بنیادی مسائل ترجیحی بنیاد پر حل کریں گے۔ اس سلسلے میں سینیٹری ورکرز، ہیلپرز اور ڈرائیورز کی تنخواہیں سرکاری مختص کردہ اجرت کے مطابق کرنے کے لیے بھی اقدامات کیے جا چکے ہیں، اور چائنیز کمپنیز نے یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ اس ماہ سے ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ یقینی بنائیں گے، جبکہ ملازمین کے دیگر مسائل اور ان کے بنیادی حق کے لیے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم ہمیشہ ملازمین کو ترجیح دیتے ہیں، کیونکہ ملازمین شہریوں کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمیشہ کھڑے ہیں۔ وہ سخت محنت، سردی گرمی میں سڑکوں پر اپنے فرائض انجام دیتے ہیں، اور ہر ادارے کی ترقی میں ملازمین کا کردار اہم ہوتا ہے، اس لیے ملازمین کو ریلیف فراہم کرنا ہمارا اولین فرض ہے۔
एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की रहमतुल्लाह शेख कहते हैं कि बल्दिया शर्की के ज़ेर इंतज़ाम तिब्बी मराकज़ को बेहतर बनाने के साथ साथ तालीमी दर्सगाहों और लाइब्रेरियों के जरिए कौम के मेमार तैयार करेंगे। डायरेक्टर लाइब्रेरीज तलश शकील और दीगर के हमरा अल्लामा इकबाल और ख्वाजा शफी दहलवी लाइब्रेरीज के मुआयने के मौके पर एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की शुएब अहमद मलिक का कहना था कि स्कूलों, तिब्बी मराकज़ और लाइब्रेरियों की सूरत हाल बेहतर बनाना तरजीहात है। बल्दिया शर्की के ज़ेर इंतज़ाम तिब्बी मराकज़ को बेहतर बनाने के साथ तालीमी दर्सगाहों और लाइब्रेरियों के जरिए कौम के मेमार तैयार करेंगे। मरहलावार लाइब्रेरियों को ई लाइब्रेरीज में तब्दील करने के लिए काम किए जाएं। कुतुब बीनी की अहमियत आज भी अपनी जगह है। नौजवान नस्ल के मुताल्ले के ज़ौक़ को लाइब्रेरियों के जरिए ही बढ़ाया जा सकता है। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की रहमतुल्लाह शेख ने हिदायत की कि लाइब्रेरियों को बेहतर बनाने के साथ मयारी कुतुब के ज़ख़ीरों से भी उन्हें आरास्ता किया जाए। इस मौके पर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स इम्तियाज़ भुट्टो, इकबाल मल्ला, डायरेक्टर जफ़र इकबाल, आगा समीर और दीगर भी मौजूद थे। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया कोरंगी साजिदा काजी ने कहा है कि महदूद वसाइल के बावजूद भी भरपूर कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा तरक्याती कामों की अंजाम दही को मुमकिन बनाया जाए। पिछले 3 माह में मुख्तलिफ तरक्याती कामों को अंजाम दिया है। म्यूनिसिपल कमिश्नर इरशाद अहमद और खालिद मल्ला और दीगर के हमरा जिया कॉलोनी, यूसी 36 और वीटा चौरंगी गेट्स फार्मा 7000 रोड पर जारी असरकारी का मुआयना करते हुए एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया कोरंगी साजिदा काजी ने कहा कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की खुसूसी हिदायत पर सूबाई वज़ीर बल्दिया सैयद नासिर हुसैन शाह, एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने बल्दिया कोरंगी को भरपूर ताउन फराहम किया है, जिसकी वजह से बल्दिया कोरंगी में कामों का सिलसिला तसलसल के साथ जारी है। बल्दिया कोरंगी में वर्ल्ड बैंक और क्लिक के मुश्तरका ताउन से मुतादिद मंसूबे शुरू होने जा रहे हैं। इस मौके पर म्यूनिसिपल कमिश्नर इरशाद अहमद का कहना था कि अवाम को रिलीफ देना हमारी बुनियादी जिम्मेदारियों में शामिल है और हम ये जिम्मेदारी इबादत समझकर सरअंजाम देते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर जिला कौंसिल कराची नूर हसन जोकियो कहते हैं कि तमाम तर वसाइल को मसावी बुनियादों पर यूनियन कौंसिल की सतह पर ला रहे हैं, जबकि बिला तफरीक खिदमत हमारी पहचान है जो कि हमेशा जारी रहेगी। मजार खान, जोकियो, गोट और दीगर इलाकों में फराहमी आपकी स्कीम्स का मुआयना करते हुए एडमिनिस्ट्रेटर जिला कौंसिल कराची नूर हसन जोकियो ने कहा कि मकासद के हुसूल के लिए तरीक़ेकार भी वैसे इख्तियार करना होता है। अगर हम स्कीम्स में तामीराती मराहिल के दौरान जांचने के अमल में कमी करेंगे तो नताइज हमारी उम्मीद से कम आया होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जिला कौंसिल में जो भी काम किया जा रहा है वो मुकम्मल टीम वर्क के बाद किया जाता है, इसलिए हर उमूर का जायजा मुकम्मल होने से कबल ही लिया जाता है, जबकि हमारी काविशों से जो समरात मिलते हैं उनसे अहले इलाका की जरूरियात बेहतर अंदाज से पूरी होती हैं। फराहमी आपके हवाले से चंद शिकायत मौसूल हुई थी, जिनका जायजा लेने के बाद फौरी तौर पर वहां कामों का आगाज कर दिया गया है। इसके साथ दीगर इलाकाई जरूरियात के हवाले से अमायदीन इलाका से मुलाकात की है, जिन पर जल्द काम शुरू किया जाएगा। उनका मजीद कहना था कि हमने जो अहद किया है उसको पूरा करना हमारे लिए सबसे अहम है। जरूरी नहीं कि किसी स्कीम्स पर अमल दरामद से कबल मुतला किया जाए, बगैर इत्तला किए जाने से बहुत अहम मसाइल नजर आ जाते हैं। तमाम तर वसाइल को मसावी बुनियादों पर यूनियन कौंसिल की सतह पर ला रहे हैं। बिला तफरीक खिदमत हमारी पहचान है जो हमेशा जारी रहेगी। पानी के फराहमी के हवाले से जो मसाइल थे उनको फौरी तौर पर हल कराने की हिदायत दी है। अपनी हुदूद को मिसाली बनाने के लिए भरपूर काविशें कर रहे हैं, जिसमें मुतबातर कामयाबियां भी हासिल हो रही है। इस मौके पर साबिक रुकन कौंसिल जाम आलम जोकियो, सब इंजीनियर मुर्तजा दर्स और दीगर भी मौजूद थे। और अब कुछ बात करेंगे सूबे सिंध में जारी बल्दियाती मुलाजमीन की हड़ताल की। सूबे सिंध में बल्दियाती मुलाजमीन की हड़ताल चौथे रोज भी जारी। कराची समेत सिंध के कई शहरों में कचरे के ढेर। बल्दियाती मुलाजमीन की हड़ताल के बायस ताफून और गंदगी की वजह से शहरी बेहद परेशान। शहरियों का कहना है कि 2-3 रोज से बल्दियाती अमला कचरा उठाने नहीं आ रहा, जिससे गली मोहल्लों में ताफून फैल रहा है और बीमारियां फैलने का भी खदशा है।
बल्दियाती मुलाजमीन की हड़ताल के बायस ताफुन और गंदगी की वजह से शहरी परेशान होने लगे। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में सैवरेज का पानी शाहराहों पर जमा हो गया है, जबकि कराची में सॉलिड वेस्ट के तहत सफाई सुथराई का काम जारी है। शहरियों का कहना है कि 2-3 रोज से बल्दियाती अमला कचरा उठाने नहीं आ रहा, जिससे गली महलों में ताफुन फैल रहा है और बीमारियां फैलने का खदशा है। स्ट्राइक की वजह से जो कचरा उठाते हैं वो हजरात ने कचरा उठाना छोड़ दिया और एहतजाज कर रहे हैं, तो उनके मुतालबात माने जाए। और जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे बैकअप में सारा मस्जिद भी सामने है और यहाँ पर कचरे के माहौल आप देख सकते हैं। इसकी वजह से गंदगी और बच्चे बीमार, और आमतौर पर आजकल जो बीमारी फैली हुई है उसकी वजह से तो बहुत ज़्यादा बीमारी फैल रही है। तो इन हजरात के मुतालबात माने जाए और यहाँ से कचरे की सफाई की जाए। 3 दिन 4 दिन से इन लोग की स्ट्राइक है, क्या वजह है? ये हुकूमत का काम है, कचरा उठाने नहीं आ रहे। और ये मस्जिद के हवाले से हम लोग को बहुत प्रॉब्लम होती है। ये मोहल्ले वाले, यहाँ के लोग कि इतनी परेशानी में है कि हम नहीं समझ पाते कि हम इनको किस तरह एप्लीकेशनें देते हैं, हर चीज़ कहते हैं। बहुत परेशानी है, बीमारियां फैल रही हैं। हाँ, 3 दिन से कचरा उठ नहीं रहा और ये 3 दिन से कचरा यहाँ पे दुनिया का ढेर है। इस कचरे की वजह से और स्ट्राइक की वजह से हम लोग बहुत परेशान हैं। बस लिहाजा मेहरबानी करके इस कचरे की गंदगी को साफ कीजिए। बल्दियाती मुलाजमीन कहते हैं कि कटौती से हर माह 35% तनख्वाहों से महरूम हो रहे हैं। वज़ीर आला और चीफ सेक्रेटरी की हिदायत के बावजूद खजाने से तनख्वाह देने में रुकावट डाली जा रही है। और अब आपको बताएं कि जिला वस्ती इंतजामिया की सख्त गजीदगी मुहिम भी महज दावों तक महदूद रही। जिला वस्ती आवारा कुत्तों से भर गया। टोलियों की सूरत में घूमते आवारा कुत्ते शहरियों के लिए खौफ की अलामत बन गए। बुजुर्ग खवातीन और बच्चों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया। जिला इंतजामिया की सख्त गजीदगी मुहिम भी महज दावों तक महदूद। शहर कराची में टोलियों की शक्ल में घूमते आवारा कुत्ते खौफ की अलामत बन गए। शहर में आवारा कुत्तों की बहुतात शहरियों को मजीद परेशानियों में मुब्तला करने लगी। बढ़ती आवारा कुत्तों की तादाद पर शहरियों ने खौफ का इजहार करते हुए कहा कि हम रात के औकात में गलियां बदल कर घर जाते हैं। सिंध हुकूमत इलाके में कुत्तों की तादाद को कम करने के लिए इकदाम उठाए। इस हवाले से मैं यही कहूँगा कि सिंध गवर्नमेंट इसका एक्शन ले। जो पहले कुत्ता मार मुहिम चलाया करते थे, पहले चला जो करती थी वो अब रुक गई है। काफ़ी जगहों पे कितने कुत्ते के केसेस इतने हो गए हैं कि कुछ हॉस्पिटल में तो दवाई इसकी वैक्सीन भी अवेलेबल नहीं है। अब जैसे ये अब्बासी हॉस्पिटल है, इसमें भी 2 कुत्ते ऐसे हैं पीछे सर्द खाने की तरफ। बंदा अगर कोई न्यू बंदा जैसे अपना राउंड पे असल में जो या डॉक्टर भी हो गए या यहाँ के रिहायशी हो गए, वॉक करने के लिए भी निकले अगर अंदर, तो वहाँ भी कुत्ते पीछे लग जाते हैं। कुत्तों की तो भरमार है। जब रात बेरात हमारा तो काम रात में जब हम घर की तरफ लौटते हैं तो लातादाद कुत्तों का सामना करना पड़ता है। कभी वो आगे पीछे गाड़ियों पे लपकते हैं, लेकिन कोई मुहिम का आगाज़ ही नहीं हो रहा। बच्चे परेशान हैं, पेरेंट्स बहुत परेशान हैं इस बारे में कि छोटे बच्चों को काट लेते हैं रात में या सुबह 7 बजे बच्चे स्कूल के लिए निकलते हैं। बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है ना। और आवाम की तरह मुझे भी मुश्किलात का सामना है और बेतहाशा कुत्ते और गली से आपका गुजरना मुश्किल हो जाता है। कुछ कुत्ते तो मानूस हो चुके हैं, लेकिन जो मानूस नहीं है वो काटने को दौड़ते हैं। आप बच्चों के साथ हों, आप फैमिली के साथ हों, बाइक्स पे बड़ा मुश्किल हो जाती है। तो मैं हुकाम आला से यही दरख्वास्त करूँगा कि अब इस पर थोड़ी तवज्जो दी जाए और इनको जो है काबू में रखा जाए। आवारा कुत्तों की तादाद में इजाफे के सबब सिंध भर में सख्त के वाकयात में तशवीशनाक हद तक इजाफा हो चुका है। कराची में सड़कों और कचरा कुंडियों में लगे कचरे के ढेर भी साफ नहीं होते, जिसके बाइस गंदगी के अंबार में मौजूद खुराक से कुत्तों की अफजाइश तेज हो गई है। कैमरामैन शहरी के साथ सैयद नमान गुल, मेट्रो 1 न्यूज कराची। और इसी के साथ बल्दियाती खबरों से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज।